1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشکند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا۔ اس میں طاقتور دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر باسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا، کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے، ظاہری وار۔ میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا۔ ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا، پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ ختمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں
क्योंकि इसका निजाम पानी के साथ है। इसी तरह या तहारो जुबान से नहीं नहाते हुए दिल में पढ़ सकते, ये गुस्ल करें। अच्छा, आज तक छुपाया नहीं, याद ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं अल्लाह की तरफ से अचानक याद आती हैं। जैसे फरमाया कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आप जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जैसे वुजू की दुआ, उसका ताल्लुक भी पानी के साथ। अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी वस्सिली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। मुझे दुनिया ने मुझे ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों ने बताया कि वहां एक साहब कहने लगे सारी जिंदगी वहां अगर कोई बंदा छोटा सा घर ले, मौत तक उसकी किस्तें भरते भरते जिंदगी गुजर जाती है। इस वुजू की दुआ से मैंने पता नहीं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कौन सा मुल्क मुझे याद नहीं, उस मुल्क में मैंने बड़ा घर पाया, बगैर किस्तों के पाया, गैर से असबाब मिले, और आज मेरा अपना वहां बड़ा घर है। आप भी आए, मैं कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह लाएगा। बड़ा घर पाया। ये भी वुजू के दुआ पानी के दौरान का अमल है, दिल ही दिल में पढ़ने हैं। अच्छा, एक पानी के दौरान का और अमल बताता हूँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो पानी पे हाथों पे पानी डाले वुजू के लिए और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उसका वुजू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते 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 थक जाएंगे। इतनी नेकी आप खुद सोचें, पता नहीं कितने 70,000, कितना 1,00,000, कितने फरिश्ते होंगे, और वो एक ही फरिश्ता काफी है। फरिश्ते की ताकत कितनी, फरिश्ते का कलम कितना, फरिश्ते की रफ्तार कितनी, फरिश्ते की कुव्वत, फरिश्ते कितनी नेकियां लिखेगा। सिर्फ वुजू से पहले आपने क्या करना है, बस इतना लफ्ज पढ़ना है। आप सोचें ये लफ्ज कितना आसान है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस। ये भी पानी का अमल है, ये भी पानी का। एक पानी का अमल और बताऊं, बारिश के अंदर खड़े होके, अरब का उसूल है, अरब का मिजाज है, जब बारिश आती है बारिश में खड़े होके दुआ मांगते हैं। मेरे आका ने फरमाया बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, जरूरी नहीं उसमें खड़े हो जाए। हाँ, कितने लोग अरब में, अजम में हैं जो बारिश में खड़े होकर दुआ करते, गर्मी है, मौसम गर्म है, बारिश में खड़े हो दुआ करते हैं। ये भी पानी के दौरान का अमल है। पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, कश्ती की दुआ कौन सी है, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर, ये पानी के दौरान का अमल। अच्छा, पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, फरमाया जब पुल से गुजरो, या रब्बी सल्लिम या रब्बी सल्लिम, या ये पुल की दुआ है, पुल से गुजरो। और बताएं आपके जहन में कोई पानी के दौरान का है तो आप भी जरूर। ज़मज़म की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। हाँ, और बताएं जो हदीस में आ रहा है वो बताएं। ये छोटे अमल हैं, याद आए तो जरूर बताइए। ये छोटे अमल हैं। या कहारो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम। या लतीफो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम। या वदूदो, चारों कोनों से हिफाजत का निजाम। एक बाबा जी थे बड़े पुराने, उनके आज एक लफ्ज बताता हूँ, अचानक याद आए। कहने लगे, एक जगह बैठे थे, अपनी हिफाजत का निजाम हमेशा सोचा करो। पूछा कैसे, फरमाया कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए और कहां लगे, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए कहां से लगे, और फिर कहा लाठी तो लगे हाथ नजर ना आए। ये हैं ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं, नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए पर करने वाले नजर न आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पड़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए। आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। आए फिर पढ़ते हैं वो दुआ पूरे वतन की सलामती की नियत करके। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, व कफा बिल्लाहि वलीम, कफा बिल्लाहि नसीरा। जहाँ असबाब बहुत जरूरी हैं वहां दुआएं भी हैं। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ। अल्लाह अपनी मदद भेज दे। आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद न भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर। ये दुआएं एक बहुत बड़ा मजमा बैठ के पढ़ रहा। इस वतन की सरहदों की हिफाजत, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, घरों की, बाजारों की, बेटियां बेटे, घर बूढ़े जवान, आंचल गलियों, सबकी हिफाजत की नियत करके बहुत बड़ा मजमा हिफाजत की ये दुआएं हैं, हिफाजत के अमाल हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके मुंह से सबके लिए खैर निकल रही, सबके लिए भला निकल रहा।
या कहारो। मुझे हाजी साहब क्यों याद आए, जिनकी मैं तुरबत पे गया और उनकी मोहब्बतें ऐसी हैं, मेरी सारे ज़ब्त के बंधन टूट गए। हालांकि मैं इससे पहले सूफी अब्दुल्ला साहब के पास गया, नहीं रोया। उसके बाद मैं गुलाम रसूल साहब के यहाँ रात इशा के बाद पहुंचा, नहीं रोया। हाजी साहब के साथ मेरी मोहब्बत, उनकी शफकत थी। उनके साथ, हाजी साहब के साथ एक बाबा जी होते थे, उनसे पूछे आपका नाम, फौरन कहते मेरा नाम मकबूल मोटा है। खुद कह देते बहुत मोटा। खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठे थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शिलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शिलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजिर थे, मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा दिन तो हंगे का खाएगा, इसको हम ले जाएंगे, इसको साथ रख। उन्होंने कहा हम इसको साथ। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखा। कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा ईशा, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया। और फिर मकबूल मोटा रोने लगा। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? सुन लें, अब जो कहने लगा हूं, अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ मशहूर पामिस्ट गुजरे हैं एम ए मलिक, बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा मेरे ज़ेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गए। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू सुबह फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाए, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या हो, जिसको सुबह फजर से पहले तख्तादार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया। जब कर रहा होगा वो क्या होगा, फिर सुने। ये करके दिखाया है, क्या लफ्ज कह रहा हूं, ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया। और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं। उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखे। लगता है उन्हें लगी नहीं, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमल करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, मुझे आज भी याद है मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा खाना निकालना फिर सो जाना। बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं, ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चैन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चैन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला कि सब क्या खाएंगे, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं खानों से, इतना खा रहा, खत्म गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कप था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं। एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। ये उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है। मकबूल मोटा कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू?
हाँ तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। हाँ मैं तुझे बताता हूँ कि मकबूल मोहतरम दुआ कैसे मांगे और अर्शों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमल लिए हों और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे हैं, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ। और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। बड़े बड़े थे जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, हाँ उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजरे बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूँ। शुक्र है मेरा जो कमाता हूँ लंगर में लग जाता, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूँ। पर मैं फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। अल्लाह लंगर में लगवा रहा, कोई ऐसी जगह नहीं लगवा रहा, लेकिन इस मामले में मैं सरमायादार हूँ। मेरे साथ मुखलिसीन का एक पूरा निजाम है पूरे आलम में, पूरी दुनिया में। इससे बड़ा कुछ सरमाया है आज के दौर में। आपको खुलूस वाले, लिल्लाहियत वाले, सच्चे दर्द वाले, सच्चे गम वाले मिल जाएं आज के दौर में। मैं बहुत बड़ा इस मामले में सरमायादार हूं। मुझे जब खुलूस वाले मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, कई लोग ऐसे मिलते हैं, मैं उनके वसीले से दुआ करता हूं, मेरा मौला इतना ऐसा खुलूस, इतनी सच्चाई, इतनी लिल्लाहियत, ये अपना सब कुछ खर्च करके, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, गौर से सुनिएगा, इतना सब कुछ लगा के न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, न अपने अंदाज से, ये जता नहीं रहा छुपा रहा है, जता नहीं रहा छुपा रहा। मैं तो बाज़ औक़ात उनके वसीले से, आज की बात है, आज या कल, आज बंदे इतने आते हैं भूल जाते हैं। एक अम्मा बूढ़ी आई, आज आई या कल आई, आप यकीन जानिए मैंने उसके वसीले से हमेशा दुआ मांगी। शेखुल हदीस ने लिखा है, हाँ उस जवान का वाकया जो मछली उठा के लाया, मैं बयान करता रहता हूँ। और बीवी ने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जवान है, इसको कहीं रह जाए, मछली पकाते हैं, ये मजदूर भी खा ले। हालांकि उसने मछली उठाने की मजदूरी ले ली थी। तो उसने कहा मेरा रोजा है, मैं मछली नहीं खा सकता। तो कहा आपको हम ठहरा लेते हैं, आप यहाँ ठहर जाएं तो रोजा हमारी मछली से। कहा ठीक है। वो ठहर गया, मछली से रोजा इफ्तार किया। रात को उसको क़याम गाह दी, रात के किसी पैर आखिरी पैर में चला गया। सुबह देखा तो नहीं था, लेकिन अनोखा वाकया हुआ। उनकी गली में, उनकी जगह में एक लूली लंगड़ी अपहाज औरत थी जिसका इलाज नहीं हो सका था। वो चल रही थी सही सलामत। तो पूछा क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे चल। सुने गौर से। मैंने आपके वो जो मेहमान था, उस मेहमान के वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सेहत दे दी। उस वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दी, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद कर दी, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त कर दी। अल्लाह के दोस्त, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया सालिहीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह को उनका वसीला दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, मैं कसमें नहीं उठाता, कभी जिंदगी में कसम उठाता हूँ। मेरी आप सैकड़ों दर्स पड़े हैं, जिंदगी में कसमें नहीं उठाता, पर आज कसम उठा रहा हूँ रब्बे काबा की कसम। अल्लाह उनकी सुन लेता है, अल्लाह पूरी कर देता है और अल्लाह करके दिखाता है। कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीर। या कहारो अपनी जिंदगी में, अगर आप काली दुनिया में मुब्तला हो चुके हैं, काले रोग लग गए हैं, या काली इल्लतें लग गई हैं, कोई जिल्लतें लग गई हैं, कोई किल्लतें लग गई हैं, या काले लोग आपके पीछे हैं, कोई दुश्मन की शक्ल में, कोई इंसान है, हासिदीन है, या जिन्नात हैं, या काले बदरूहे हैं, या देव हैं, कोई ऐसी चीजें आपके पीछे लग गई हैं, तो फिर या कहारों के साथ दोस्ती करें। और आज जिंदगी में पहली दफा मैंने या कहार गुस्ल के दौरान पढ़ने की इजाजत दी है, और साथ एक वजाहत की है कि मैंने बड़े बड़े साहिब इल्म लोगों से पूछा है, इसकी तहकीक की है कि इंसान गुस्ल के दौरान जुबान से नहीं पढ़ सकता, पर दिल से, जुबान से, क्योंकि बैतुल खला की दुआ हर बंदे को नहीं आती। अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें। अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें, जरूर याद करें। और सल पे वाकया जा रहा है, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली थे। 1000 साल के बाद 1974 में काबुल में ज़ल्ज़ला आया, उनकी मजार फट गई, तो उस दुर्वेश का कफन मैला नहीं हुआ था। 1000 साल के बाद
محمود غزنوی بادشاہ. تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا, طاقتور عروج تھا. تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے. تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم ان کا علم سلب کر لیتے, ان کا خود علم چھین لیتے ہیں اور ان کا علم سلب کر لیتے, ان کا علم سلب کر. پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا. محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا, بیمار ہو گئے. تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو, شاہی لباس پہنایا جائے, بالکل ان کے ہم شکل ہو. وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا, اس کو ہم شکل بنایا گیا, شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا. جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا, یہ تو پھر رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو تھا. اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا, صاحب نظر صاحب